मन में स्फूर्ति और ताकत। झंडू केसरी जीवन, अब असंभव कुछ भी नहीं। जब बड़ी हो जाओगी तब मिलेगा ये तुम्हारे लिए। अब तुम बड़ी जो हो गई हो। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। टीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। For India's financial campus, a challenge from Citibank is right up its alley. You presented a positioning statement or a proposition. How is it consistent with what Citibank has been focusing on? We are still catering to the elite. Radical ideas. Doesn't this sound very laissez-faire? No, it is not laissez-faire. Great aggression. The solution that you are suggesting is less relevant for the real world. It's not a valid statement. There are changes we have to make. IIM Calcutta's brightest minds are determined to live up to their reputation. On Lime Season 3 at these times. Blackberry's menswear. Go sharp. तो इंडिया रियल एस्टेट डे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं रियल एस्टेट बाजार की, साथ ही जो नया रेगुलेटर अब इसमें आ सकता है जिसके लिए ड्राफ्ट बिल तैयार हो गया, उस पर से हमने चर्चा शुरू की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रोतिन बनर्जी अब हमारे साथ यहाँ पर हैं, टाटा ग्रुप हाउसिंग के सीएमडी। ब्रोतिन, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस बिल के लिए क्या है? I think it's a right thing because it will bring in transparency, but I think it's completely one-sided. It does not protect the industry as a whole. There are many people. This is an industry which uses and impacts a large number of people and large number of industries, and government is very overpowering as it is in its present thing, and things like delay in approvals, delay in material shortages, stuff like that, which impact very badly a project, and for no fault of the developer or for the company. Those things also should be taken into account. There are many times there are malified claims which are filed by consumers, and who then supports the company? The company or the real estate is always lampooned as as being the bad guy. But I think one has to very look at it and understand who is being fair and who is not being fair. I don't think that the bill or the regulation as it is takes care of those provisions. नहीं, पर ब्रोतिन आप कह रहे हो वन साइडेड, यानी आप कह रहे हैं ये कंज्यूमर के हित की चीज है, बिल्डर्स के लिए अच्छी चीज नहीं है। मुझे तो लगता है कहाँ पर प्रॉब्लम है? I'll tell you what I think। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो 70% पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखने की बात हो रही है, क्या ये एक दिक्कत है कि जो पैसा बायर से आ रहा है वो एस्क्रो अकाउंट में चला जाएगा, तो बिल्डर को अब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी? पहले वो पैसा यूज कर सकते थे, अब एस्क्रो अकाउंट में अगर वही प्रोजेक्ट शुरू होता है वो पैसा वापस करना पड़ेगा। क्या ये दिक्कत है? I don't think for us it is a problem. I don't think for the industry, for the big developers it's a problem, because they anyway must be doing these good practices. The issue where I have a problem with, और मुझे सबसे ज़्यादा problem है, not with the fact that you are protecting consumers' interest. As you would know on this channel and others, I have always been saying that we should protect it because it's one of the most valued asset classes and which have been completely unregulated. But I think a large part of the problem which impacts this industry is also to be done because of the government and because of over-regulation, approvals, and a lot kinds of lack of transparency. The lack of transparency is only not with the developers or with the builders. It's also because of the regulation, the bureaucracy, and the people in the government who takes complete advantage of this situation, but then brings in regulation also to regulate the developers. It has to be more balanced. It has to protect the citizens of India. It has to protect the consumers. It has to protect the industry. लेकिन मिस्टर प्रभु, आपको लगता है कि बैलेंस है यहाँ पर? जो भी चीज रखी गई है कंज्यूमर के हित की चीज है, आपको लगता है ये जैसे वो कह रहे हैं ब्रोतिन जी है कि इतना बैलेंस नहीं है, वन साइडेड है? क्या अच्छाइयां हैं इस ड्राफ्ट की? देखिए, जब हम बिल्डर को एक बाजू लेते हैं और कंज्यूमर को लेते हैं, जो पावरफुल लॉबी है जिसके पास पैसे के टोटल कंट्रोल आती है, तो उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ऐसे एक बिल का बहुत जरूरी था। क्योंकि जहां तक हम देखते हैं कि कंज्यूमर को आज कोई तकलीफ होता है कि उनको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए या सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए, अलग जगह में जाना है, उनको पता नहीं कि रिड्रेसल किधर होती है। आज इधर एक अथॉरिटी है, रेगुलेटर है, जिनके पास हम जा सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट जब शुरू होती है तो सब ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, सब पेपर वर्क पता चलता है, तो एक ही फ्लैट बेचा है वो भी लिखा जाता है। नहीं तो आज एक बिल्डर है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अच्छे बिल्डर का कमी है,
कई बिल्डर ऐसे हैं कि एक एक फ्लैट दो दो तीन तीन लोगों को भेजा है और अक्का प्रोजेक्ट एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मॉडगेज किया है, तो कंज्यूमर किधर जाना चाहिए, कैसा जाना चाहिए पता नहीं है। तो ये जिस तरह से प्रोटेक्शन की एक बात आ रही है, ये बिल बहुत बढ़िया है, कंज्यूमर के लिए तो बहुत जरूरी था और इससे अच्छा रेगुलेट हो जाएगा। और बाकी का जो रेगुलेशन की बात जो बिल्डर लोग बता रहे हैं तो वो तो आ ही जाएगा। यहाँ पर कंज्यूमर को इस बिल से प्रोटेक्शन मिलेगा, ये कह रहे हैं यहाँ पर रमेश प्रभु साहब। अब एक राय इस पर हम ले लेते हैं अनुज पुरी साहब की। अनुज जी, आप क्या कहेंगे इस बिल के बारे में? देखो, रियल एस्टेट के अंदर 4 मेन स्टेक होल्डर्स हैं। पहला है कंज्यूमर, वो आई थिंक सारा ग्रुप एग्री कर रहा है कि कंज्यूमर के हित में है, एंड आई थिंक आई एग्री विद ब्रोतिन कि सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो कंज्यूमर है, तो ये बहुत जरूरी था ये एक्ट आना, एंड ये काफी फेवर में है कंज्यूमर के, एंड ऑल ऑफ अस एग्री। मेरे ओपिनियन में सेकंड स्टेक होल्डर जो है डेवलपर, उसका भी ये बहुत हित के अंदर बिल है, क्योंकि डेवलपर्स आज की डेट पे जब मैं इंडिया में देखता हूं तो इतने अनस्क्रूपुलस डेवलपर्स आ गए हैं इस मार्केट के अंदर कि गुड और बैड डेवलपर्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा। आई थिंक जो गुड डेवलपर्स हैं वो काफी एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, पर आज की डेट में जो गुड डेवलपर्स हैं उनका जो नंबर है बहुत कम होता जा रहा है देन बैड डेवलपर्स। सो आई थिंक जो गुड डेवलपर्स हैं वो इस बिल को डेफिनेटली राइट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि डेफिनेटली हमारे हित में, क्योंकि हम तो एज इट इज ये प्रैक्टिसेस जो बिल के अंदर फॉलो करी हुई है वो फॉलो करते थे। जो थर्ड स्टेक होल्डर है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट पे, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत घबरा रही हैं फंडिंग देने में रियल एस्टेट को, क्योंकि जो गवर्नेंस है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो उनको समझ ही नहीं आ रही। और पर्टिकुलरली अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में प्राइवेट इक्विटी की बात करते हैं और जो फॉरेन की प्राइवेट इक्विटी इंडिया आ रही है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की वो बहुत हाई है। वो इसलिए हाई है क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जो रियल एस्टेट का मार्केट है ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। जिस टाइम आप इस पे ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे आप देखेंगे ज्यादा कैश फ्लो आएगा बाहर से और कम दाम उनको एक्सपेक्ट करेंगे, कम रेट ऑफ रिटर्न उनकी एक्सपेक्टेशन होगी क्योंकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। मैं चौथा जो है स्टेक होल्डर, जी बोलिए अपना जो गवर्नमेंट है, आई थिंक वो बिल्कुल ठीक है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन या उसका ओनस कहीं पे भी इसके अंदर नहीं आ रहा है। सो ये क्लियरली जो है 3 स्टेक होल्डर्स को एड्रेस कर रहा है। एक स्टेक होल्डर जो जिसका काफी से है इसके अंदर, उसको बिल्कुल भी एड्रेस नहीं कर रहा। चलिए, मैं बमन आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रावधान इसमें यह भी है ड्राफ्ट बिल में कि अगर जो बिल्डर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करता, प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है, तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है, और अगर पैसा लिया है वो प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हुआ तो पैसा वापस कीजिए इंटरेस्ट के साथ। क्या आपको नहीं लगता कि इस सेक्टर में कई ऐसे भी बिल्डर्स हैं जो फिलहाल ऐसा इसका फायदा उठाते हैं, तो ये काफी हद तक उनके लिए मदद करेगा, कंज्यूमर के लिए फायदे की चीज है लेकिन आपकी कम्युनिटी के लिए भी फायदे की चीज है? बिल्कुल, जैसे अनुज ने अभी बताया, गुड डेवलपर एंड बैड डेवलपर। मैं तो मानता हूं देयर आर डेवलपर्स एंड देयर आर पीपल हु गेट इनटू द बिजनेस, क्योंकि उनको लगता है इसमें काफी फायदा है। अच्छे डेवलपरों के लिए ये अच्छी बात है। ये ऑलरेडी सारी इंडस्ट्री की जो गुड प्रैक्टिसेस है फॉलो करते हैं। मैं मानता हूं कि इनमें बढ़ोतरी भी आएगी, लेकिन जो हमारे यहां पे एक जो नई रूल आती है उसका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है आपकी, it is a fact. We should open our eyes and see it that RTI activism, which is a good thing, is actually getting more misused today. और इसी तरह से अगर विंडिकेशन होगा और आप अगर डेवलपरों के पीछे लग जाओगे तो इट्स ऑलवेज इजी टू गो आफ्टर द बिग फिश। तो जो बड़े डेवलपर हैं उन पे अटैक्स चालू हो जाएंगे। ये रोकने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आपको एक तरह का इसका टेस्ट केस करना चाहिए, एक जगह में लगाना चाहिए, वहां के डेवलपरों को कॉन्फिडेंस में लेके इसमें कितनी सारी चीजें आती हैं, क्योंकि आप ऑल इंडिया कुछ भी चालू कर दोगे तो उसका कंट्रोल लेना डिफिकल्ट है। वन मोर थिंग दैट वी शुड क्लियरली बी अवेयर ऑफ इज दैट वेरियस ज्योग्राफीज में वेरियस प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, और ये वेरियस प्रैक्टिसेस वो एरिया की लैंग्वेज की तरह हैं। तो मान लो आप गुजरात में बिजनेस करते हो या इन महाराष्ट्र पूना में या मुंबई में बिजनेस करते हो, ये वहां की लोकल लोगों की जो प्रैक्टिसेस फॉलो होती है ये अलग अलग है। तो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन इन द बिल इवन दीज लोकल प्रैक्टिसेस। इसी पर हम और बात करेंगे, हम सुझाव भी लेंगे। ब्रोतिन भी कुछ पॉइंट्स पर बात कर रहे थे, वो सुझाव क्या है, कैसे ये बिल और बेहतर हो सकता है, क्योंकि अभी इस पर डिबेट होगी। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। ये इलाका